Hello everyone. We'll begin with a new poem today, Wind. This poem, Wind, has a very detailed meaning. Wind here is not simply the air currents that blow, but wind here symbolizes problems and sufferings that a human faces in his life. Also, the poet has beautifully given the solution how to face and how to tackle the problems and sufferings that we face every day in our lives. We'll understand the poem better once we'll read it. First, we'll go through the poem, reading it, and then we'll understand the content of the poem. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? The wind blows strongly and causes a lot of destruction is understood, obviously. But here, the poet tries to say that we face problems and we feel distracted. We feel broken. We feel shattered. We don't have any way out. How to face it? Emotionally, we get broken up. So, how can we make friends with it here means how can we tackle those problems and how can we overcome those? Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses. Frail is weak, broken houses, broken doors. Crumbling everywhere is broken. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Winnows means to blow away something. फूंक मार के किसी चीज़ को हम जैसे उड़ा देते हैं या हवा की वजह से जब कोई चीज़ हल्की होती है जो उड़ जाती है, दैट इज़ विनो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. Let's join the doors firmly. Firmly means strongly. Practice to firm the body. Firm again over here is to make your body strong. Make the heart steadfast. Steadfast is again strong. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. I believe a little bit of the poem must have been understood by you. Still, we'll go through the poem word by word and understand it better. Wind comes softly. The poet asks wind to come softly. बहुत तेज़ी से हवा ना चले, थोड़ा कम धीमे से चले, वो रिक्वेस्ट किया है पोएट ने. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. जब हवा बहुत तेज़ चलती है, तब विंडोज़ के शटर्स आपको पता होगा जिससे हम दरवाज़ों को या विंडोज़ को बंद रख सकते हैं. तो जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो ये शटर्स टूट जाते हैं. सो द पोएट इज़ अगेन रिक्वेस्टिंग द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर का मतलब होता है फैला देना. जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो घर के अंदर पेपर्स अगर कहीं पड़े होंगे तो वो सब स्कैटर हो जाएंगे. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ में से बुक्स भी गिर सकती है अगर वो बुक्स पतली या हल्की हुई. There, look what you did. You threw them all down. The poet says that the wind has brought everything down. The wind has threw the books from the shelf. You tore the pages of the books. Poet also says that the destruction caused by the wind is too much. Not only scattering the books, scattering the paper, bringing the books down from the shelf, but also the wind has torn the pages of the books. हवा बहुत तेज़ चलती है और बुक अगर ओपन हो तो पेजेस पलटते जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी पेजेस फट भी सकते हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. हवा चलने की वजह से बारिश होती है. ये कंसेप्ट आप जोग्राफी में पढ़ोगे. यूजुअली जब मॉनसून्स आने वाले होते हैं तो व्हेन वी लुक एट द स्काई तो हमको दिखता है कि क्लाउड्स ट्रैवल करते हैं. वो ट्रैवल किसकी वजह से कर सकते हैं? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ विंड. विंड जो होते हैं वो क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते हैं.
और उसी की वजह से फिर रेन आती है. सो हियर द पोएट सेज दैट द विंड हैज़ ब्रॉट रेन अगेन. हियर इट ऑल्सो हैज़ अनदर मीनिंग. हियर when we symbolize wind with problems in our lives, here it says you brought rain again. That means it has brought tears in a person's eyes again. It has brought grief to people again. You are very clever at poking fun at weaklings. To poke fun at weaklings means to make fun of weak people. The poet says that the wind is very good at making fun of people who are very weak. Here wind को सिम्बलाइज अगर वापस से हम करते हैं तो प्रॉब्लम्स, जो लोग बहुत वीक होते हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते हैं, वो लोग इमोशनली टूट जाते हैं, उन लोगों का मजाक बना दिया जाता है. ऐसा यहाँ इस लाइन में एक्सप्लेन किया है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स. रैफ्टर्स का मतलब होता है पोल्स जिसके बेसिस पे घर की छत खड़ी होती है. क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स. Everything gets shattered and broken because of the wind, because of the problems that people face. The wind god winnows and crushes them all. Here wind god is the one who brings wind, but in humans wind god here means the problems and the sufferings that the nature has given to each and every human being, because without sufferings and without problems we won't be able to taste the goodness of happiness. So every human has some or the other problem in his life. Not even a single human being on this earth will be such जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. So the wind god winnows and crushes them all. जो बहुत वीक है, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स उन लोगों को ख़त्म कर देती है, उनको completely ब्रेक कर देती है. He won't do what you tell him. Wind god is not going to do what we tell him to. We never ask for strong winds to blow. वो ब्लो होनी होती है तो वो होती ही है. सो विंड गॉड हमारी बात नहीं मानेंगे. दैट मीन्स नेचर हमारी बात नहीं मानेगा कि वो हमें प्रॉब्लम्स ना दे. प्रॉब्लम्स तो आएगी ही. हमारे हाथों में क्या सोल्यूशन है? द पोएट गिव्स द सोल्यूशन हियर ऑनवर्ड्स नाउ. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. हम विंड को तेज़ ब्लो करने से नहीं रोक सकते, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे घर बहुत मजबूत बिल्ड कर सकते हैं. हम हमारे घर के डोर्स को टाइटली क्लोज कर सकते हैं. द सेम वे प्रॉब्लम्स को आने से हम नहीं रोक सकते, पर हम क्या कर सकते हैं? उन प्रॉब्लम्स को फेस करने का करेज गैदर कर सकते हैं. वी कैन प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. मतलब कि बहुत तेज़ हवा चलेगी तो आप अगर फर्मली स्ट्रांगली खड़े रहोगे तो आप हिलोगे नहीं. उसी तरीके से प्रॉब्लम्स आएगी और अगर आप इमोशनली ब्रोकन अपार्ट नहीं होंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. वी शुड नॉट बी इमोशनली वीक, वी शुड बी इमोशनली स्ट्रांग. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. These lines are very important. What is the poet saying here is that the wind, it blows out the weak fires. बहुत कम आग अगर होगी, फॉर एन एग्जाम्पल आप एक मैच स्टिक को जलाओगे और अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो वो बुझ जाएगी. बट अगर आप पूरा बंच जलाओगे तो अगर तेज़ हवा चलेगी तभी बुझ पाएगी, थोड़ी सी हवा में वो नहीं बुझ पाएगा. दैट इज़ व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि प्रॉब्लम्स जो होती है वो वीक लोगों को ख़त्म कर देती है इमोशनली, मेंटली, इन ऑल द वेज. पर जो इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनमें करेज होता है कि वो प्रॉब्लम्स को फेस करे, उनको प्रॉब्लम्स और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है. नेक्स्ट टाइम अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो दैट पर्सन विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस इट. सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. वीक फायर्स हियर सिम्बलाइजेज वीक पीपल. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. थोड़ी सी आग लगती है और अगर हम उसमें हल्के से ब्लो करते हैं तो वो आग बढ़ती है. ये लॉजिक आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. बिकॉज फायर गेट्स टर्न्ड आउट, मतलब कि वो फायर जब बढ़ता है तो वो किसकी वजह से बढ़ता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ एयर. उसको ऑक्सीजन चाहिए. अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फायर बुझ जाएगा. सो प्रॉब्लम्स, इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग पीपल रोर एंड फ्लरिश, और स्ट्रॉन्ग कर देगा उनको. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. प्रॉब्लम्स के साथ फ्रेंडशिप करना अच्छी बात है. हम उनको रोज़ प्रेज़ करते हैं. प्रेज़ करना मतलब उसकी तारीफ़ करना, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ देना.
अब हम कभी भी प्रॉब्लम्स की तारीफ़ नहीं करते हैं, बट ये लाइन का सिंपल मीनिंग ये है। यूजुअली आप लोगों ने कभी भी सुना होगा आपके पेरेंट्स को बोलते हुए कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है और फिर वो आज जहाँ पे भी स्टैंड करते हैं वो दिन है। सो वो आज भी उस टाइम को याद करते हैं कि हमने हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स फेस की थी। दैट इज़ वॉट इज़ प्रेजिंग द प्रॉब्लम्स। they are not actually praising the problems, but they are praising their courage, they are praising their confidence कि हमने इतना ख़राब वक्त भी अच्छे से निकाल लिया, and so we get strength to face further problems in our lives. So that is what is we praise him every day. This poem is written by Subramanya Bharati, and this poem was a Tamil poem but is translated from the Tamil language to English language. Students, I hope the poem is very much clear and understood. In the next session, we'll be seeing the figures of speech and rhyming scheme of this poem. Thank you.